Hello everyone, this is Dr. Ayush Sharma, rank 4132 in NEET PG 2021, and the video that you're about to see is taken from a series of videos that I live streamed a while back, which was titled 30 Days 19 Subjects for NEET PG 2021, which was sort of a revision program that I started. And only and only if you actually genuinely like the content and if you feel that you or anyone else, your juniors or seniors, can benefit from this content, okay, please do make sure to like and subscribe to my channel, like the video and share it. Most importantly, share it with your friends, share it with your juniors. My only goal is to make quality medical content available for everyone, and I have put the link down in the description to the main video that I streamed, so please do check it out. And thank you so much. Keep sharing, keep spreading love. Okay, all right. Now coming on to the next one. ठीक है. Now you have to understand what am I talking about here. ठीक है. तो the third artery I'm talking about is the posterior cerebral artery. ठीक है. MCA की बात हो गई है, ACA की बात हो गई है. Coming to the posterior cerebral artery. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, one thing that I forgot to tell you, and one thing that I forgot to tell you was कि there is the third nerve, CN3, the third nerve coming. Okay, now where does the third nerve arises from? The third nerve arises somewhere around here. ठीक है. यहाँ पर कहीं पर थर्ड नर्व राइज होती है. ठीक है. तो अगर यहाँ पर बेली एन्यूरिज्म बनेगा ना, तो थर्ड नर्व विल बी इन्वॉल्व. विल कम टू दैट लेटर. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. यस, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द पोस्टीरियर सेरेब्रम. ठीक है. पोस्टीरियर सेरेब्रम में क्या है सर? देयर इज अ ऑक्सीपिटल रीजन व्हिच कंट्रोल्स द विजुअल सेंसेशंस. ठीक है, विजन को कंट्रोल करता है वो. ठीक है. सो पोस्टीरियर सेरेब्रम को सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ओके, राइट. नाउ डज इट सप्लाई द अपर लिम्ब और द लोअर लिम्ब? करती है क्या? I mean, does this have anything to do with the motor क्या बोलते हैं, tracts for the upper as well as lower limb? No. Remember, the posterior cerebral artery, in the posterior cerebral artery involvement, there is no weakness. There is no weakness. ठीक है, weakness नहीं होती है. But remember that posterior cerebral artery, if it is involved, it will lead to it will lead to contralateral hemisensory loss. Now you will ask me why. ठीक है. Now this is very very important that you have to understand. देखो, posterior cerebral artery gives a very important branch which is known as the artery of Percheron. क्या बोला मैंने? I told you that the posterior cerebral artery, ठीक है, that the posterior cerebral artery gives a very important artery known as the artery of Percheron. Okay, tell me the answer to this. How many artery of Percherons are there in the brain? कौन बताएगा मुझे? How many arteries of Percheron are there in the brain? Okay, right, answer that question. Now this artery of Percheron is going to supply the thalamus. ठीक है, किसको सप्लाई करेगी? थैलेमस को सप्लाई करेगी. ठीक है. एंड इफ एट ऑल दिस आर्टरी ऑफ परचेरॉन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इट विल अगेन कॉज समथिंग कॉल्ड एज अ लैक्यूनर इन्फार्क्ट. ठीक है. तो इससे क्या होगा? देयर विल बी बाइलेटरल स्ट्रोक फीचर्स. ठीक है, बाइलेटरल स्ट्रोक फीचर्स, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन मोर थिंग, दैट दिस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाइज द एंटायर थैलेमस. ठीक है, इट सप्लाइज द एंटायर थैलेमस वाया द आर्टरी ऑफ परचेरॉन. ठीक है. ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन. आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट सपोजिंग लेट्स टेक अ रेड पेन बिकॉज इट इज एन आर्टरी. सपोजिंग दिस इज द पीसीए, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ओके, दिस इज वन एंड दिस इज द अदर पीसीए. ठीक है, एक पीसीए दूसरी पीसीए. नाउ one of these PCA, remember, one of these PCA is going to give a branch known as the artery of Percheron, and this artery of Percheron is going to supply the thalamus bilaterally. इसको सप्लाई करेगी, थैलेमस को करेगी और बाइलेटरली सप्लाई करेगी. नंबर वन. तो अगर तो ये आर्टरी ऑफ परचेरॉन जाती है, देयर विल बी बाइलेटरल फीचर्स. अंडरस्टूड? ठीक है. सपोजिंग दिस आर्टरी ऑफ परचेरॉन डज नॉट गो, ठीक है, but you should know one more thing, that the posterior cerebral artery by itself also supplies the thalamus. ठीक है, राइट वाला राइट को, लेफ्ट वाला लेफ्ट. ठीक है. तो अगर तो पीसीए जाएगा ना, if the PCA goes right, what will happen, sir? The thalamus is going to lose its blood supply. And do you know the thalamus has a region called as VPN, ventroposterior nucleus? Yes, and this is where all the sensory tracts are related. ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि the PCA, if it is involved, it will lead to a hemisensory loss. Okay, it can be unilateral. Okay,
unilateral on which side? On the contralateral side, or it can be bilateral if at all the artery of Purkinje is involved. ठीक है, give me a thumbs up if you understood. Posterior cerebral artery, remember posterior cerebral artery, even though देखो अब बात समझने की क्या है, मैंने आपको कुल मिला के ये समझाया है कि सेंसरी लॉस किसकी वजह से होता है और मोटर लॉस किसकी वजह से होता है. ठीक है, नाउ मोटर लॉस कैन occur due to two reasons, either the perfusion to the frontal lobe is gone, ठीक है, नंबर वन, और द परफ्यूजन टू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल. ठीक है, सो लैक्यूनार इन्फार्क्ट होगा तो प्योर म्यूटर हेमीप्लेजिया होगा. ठीक है, एवरीबॉडी नोज दिस. ठीक है, दूसरी बात, अगर फ्रंटल लोब जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस, राइट, बिकॉज फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्वड इन M1. अंडरस्टूड. ठीक है, सेंसरी के लिए व्हाट डू यू नीड टू नो? सेंसरी के लिए यू नीड टू नो that the sensory area is located in the superior parietal lobe, and that is the reason the patient develops motor as well as sensory weakness, hemianesthesia as well as hemiparesis in the M2 stroke. ठीक है, okay. Now another thing that you have to understand is that apart from the sensory areas, ठीक है, if the thalamus is involved, which will be involved in posterior cerebral artery, then again there will be contralateral hemianesthesia. It can be bilateral as well if at all the artery of Purkinje is gone. ठीक है, okay, चलो. Now again the most important thing here, posterior cerebral artery, it is going to supply the occipital area. ठीक है, okay. So what type of visual loss do I see here? Okay, so understand this, I see a contralateral homonymous hemianopia. देखो सर इसको, है ना, with macular sparing, क्योंकि macula is spared, remember that the macular part is supplied by a branch of MCA. Okay, so this is the type of loss that you will see, है ना. मैंने आपको क्या बताया था कि विजुअल, जब भी एक विजुअल फील्ड बनाओ ना, ये इंपॉर्टेंट है, जब ऑक्था पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें दोबारा. ठीक है, टेल यू अगेन दैट द राइट आई इज माई राइट आई. ठीक है, आई एम गोइंग टू इमेजिन दैट आई एम द पेशेंट, माई राइट इज द पेशेंट्स राइट, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द विजुअल फील्ड्स. ठीक है, तो उल्टा सीधा करने में उल्टा सीधा मत कर देना. ठीक है, रिमेंबर विजुअल फील्ड हमेशा सेम साइड की होती है, राइट इज राइट, लेफ्ट इज लेफ्ट. ठीक है, तो राइट साइड, अगर मैं राइट साइड का पीसी इन्वॉल्व है और मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग बना हो, तो ऐसा बनेगा. ठीक है, understood, all right. Apart from that, another important thing about PCA is the most difficult artery for people to understand. Okay, but I'm trying my best to explain it to you. ठीक है, चलो. The posterior cerebral artery also supplies the upper medulla and the midbrain. बात समझ लो, upper medulla as well as the midbrain it is going to supply. ठीक है, so if at all it is going to supply the midbrain, what can it cause? It can cause midbrain syndromes, which we will discuss subsequently. ठीक है, वेबर सिंड्रोम सुना है ना सबने, है ना, तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि द PCA, okay, it is not a simple stupid artery that supplies the occipital area. No, it supplies the thalamus, very important. It can cause sensory loss, contralateral as well as bilateral. ठीक है, another thing that it supplies is this, okay, it supplies the midbrain, okay, very important, supplies the midbrain and the upper part of the medulla, so it can cause brain stem syndromes. ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, आप ये बात समझो कि any type of brain stem syndrome for that matter is going to be coming from the arteries inferior और posterior to the posterior cerebral artery. बात समझिए आपने. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस एलैबोरेट ऑन वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, नाउ वर्टिब्रल आर्टरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल आर्टरी कमिंग थ्रू द वर्टिब्रल फोरामेना. ठीक है, ओके, गिविंग राइज टू द बेसल आर्टरी, है ना. अब आगे बात करते हैं इसकी. वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी आर्टरी कौन से सिंड्रोम से एसोसिएटेड है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, क्योंकि आजकल सिंड्रोम का डायग्नोसिस नहीं पूछेंगे, दे विल गिव यू अ ब्रेन स्टेम सिंड्रोम एंड दे विल आस्क यू, सर टेल मी व्हिच आर्टरी इज अफेक्टेड. Okay, so that is what is neuromedicine integrated with neuroanatomy. बात समझ में आ रही है आपको. ठीक है, ओके, वर्टिब्रल आर्टरी की बात हो रही है. वर्टिब्रल आर्टरी एसोसिएटेड विद मेडुलरी सिंड्रोम्स. ठीक है, PCA एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन सिंड्रोम्स. ओके, रिपीट आफ्टर मी, PCA एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन सिंड्रोम. वर्टिब्रल आर्टरी नीचे, वर्टिब्रल आर्टरी एसोसिएटेड विद मेडुलरी सिंड्रोम. ठीक है, मेडुलरी सिंड्रोम, है ना. Vertebral artery by itself can be associated with medullary syndrome. Okay, other than that, the branches of the vertebral artery can also cause medullary syndrome. We'll talk about this. Sorry, medullary syndrome. है ना, चलो. So two branches of the vertebral artery you have to understand. Number one is PICA. Okay, posterior inferior cerebral artery. ठीक है, so posterior inferior cerebral artery, PICA. Okay, this PICA remember is associated with lateral medullary syndrome. ठीक है, I will explain everything. ब्रेन स्टेम सिंड्रोम तो इतने क्लियर हो जाएंगे ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को. ठीक है, ओके, सो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, समझ में आई बात. ठीक है, रिमेंबर द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम बाहर की तरफ. ठीक है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज कॉल्ड एज वॉलेनबर्ग सिंड्रोम. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, सर वॉलेनबर्ग सिंड्रोम. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ वॉलेनबर्ग सिंड्रोम प्रेजेंट्स. यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग वॉलेनबर्ग सिंड्रोम. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ और नहीं तो वॉलेनबर्ग और वेबर तो सबको आता है, आना चाहिए कम से कम.
ठीक है, क्योंकि नीट में इसके बारे नहीं पूछेंगे, INICET में पूछ सकते हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं, किस्मत खराब है। यूजुअली नीट पीपल दे स्टिक टू आइदर वेबर सिंड्रोम और दे स्टिक टू वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। तो दीज टू सिंड्रोम शुड बी ऑन योर टिप्स। उसके अलावा आई टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू अप्लाई द नॉलेज टू डायग्नोज एनी ब्रेन स्टेम सिंड्रोम, वो मीडियल है या लेटरल है और कौन से ब्रेन के पार्ट का है, ठीक है। ओके, now coming back to this, let us just come back to this. So I told you Wallenberg syndrome, कौन सा syndrome होता है? Wallenberg syndrome is the lateral medullary syndrome, and this Wallenberg syndrome is due to involvement of either the vertebral artery or the PICA. Single best answer is vertebral artery, ठीक है। क्यों सिंगल बेस्ट आंसर है ये? क्योंकि सर वर्टेबल आर्टरी इज द फादर ऑफ PICA, वर्टेबल आर्टरी से ही तो निकल रही है PICA। तो अगर मेरे को एक आर्टरी मार्क करनी है तो मैं वर्टेबल आर्टरी मार्क करूंगा ना। सो रिमेंबर दैट लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, वॉलेनबर्ग सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सिंड्रोम, ठीक है, बिकॉज इट हैज सो मच प्रेजेंटिंग फीचर्स, ठीक है। ओके, सो PICA is the branch of vertebral artery, okay, can cause Wallenberg syndrome. Second one, anterior spinal artery. Anterior spinal artery is associated with medial medullary syndrome, ठीक है। ये तब आएगा जब आपकी किस्मत खराब होगी, ठीक है। लेकिन इसमें कोई रोने की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आए, ठीक है, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आया तो ओनली दी पीपल हु नो हाउ टू अप्रोच द ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज वॉलेनबर्ग वेबर सब रट के चले जाते हैं, है ना, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट, ठीक है। सो आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम सो दैट यू आर द ओनली पीपल हु कैन आंसर, ठीक है। ओके, एंड दैट इज वेयर वी विल win the race, okay, but for that you have to answer well in the other rest of the paper. That is more important. I'll talk about it. I'll make a short video, because why I'm talking about this is people keep asking me, यार तेरे मॉक में 130 135 के ऊपर कभी आए नहीं, you never got more than 130 135 correct in your mock exams, how did you make 156 correct on the exam day, right? The answer to that, I think I need to give to the people ki how I did that, because at 6 o'clock or 7 o'clock before the exam I had this thought, okay, and that is what got me my rank. Okay, I'll tell you what it is. I'll make a short video of 5 minutes 6 minutes about it, ठीक है। The last day anxiety of the exam is the is the key that you have to manage. उस दिन अगर आपने मैनेज कर लिया और अगले दिन आपने समझ लिया कि आपको क्या सही करना है, आपको क्या किस चीज़ पे फोकस करना है, तो यू विल स्कोर वेल, ठीक है। I'll talk about it later in my videos. Okay, चलो, so that is what I did. I mean, it worked for me. Okay, now coming to anterior spinal artery. Anterior spinal artery is a branch of vertebral artery. It is associated with medial medullary syndrome, ठीक है जी, medial medullary syndrome. Now, ठीक है, now we will talk about how to diagnose brainstem syndromes. Okay, are you guys ready? Okay, चलो, तो पहले तो ना हम क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ माय ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ माय ब्रेन, ठीक है, व्हिच आई एम गोइंग टू बी डीलिंग हियर, ठीक है। तो you have to understand there are 3 important parts of the brain that you need to be understanding in order to understand different types of brain stem syndromes, ठीक है। ओके, नंबर 1 इज द मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉन्स के अंदर पॉन्टाइन ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स हो सकते हैं। नंबर 3 दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द मेडुला, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू आंसर विद मी, व्हाट आर द cranial nerves that are arising from the midbrain? आंसर इज now number 3 and 4, ठीक है, सबको पता है ये बात, यस। देन वी हैव द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, यस, पोंटो मेडुलरी जंक्शन से कौन सी नर्व्स अराइज होती हैं? 5 6 7 8, यस, ठीक है। मेडुला से कौन सी नर्व्स अराइज होती हैं? 9 10 11 12, ये बात क्लियर है, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ओके, चलो, नाउ दैट वी नो दैट, लेट अस मूव फर्दर, ठीक है। आई विल शो यू अ डायग्राम, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट डायग्राम यू विल बी एबल टू आंसर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो पहले डायग्राम देखना है, थ्योरी पढ़नी है। आई थिंक आई शुड शो यू द डायग्राम फर्स्ट, ओके। सो यस, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से लेबल नहीं कर रखा, आई डोंट वांट द पार्ट्स, आई वांट द ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो सबको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से फाइबर्स आते हैं, कौन से फाइबर्स? पिरामिडल फाइबर्स, ठीक है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू राइट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द मिडल ऑब्लोंगेटा, द मीडियल पार्ट इज गोइंग टू कैरी द corticospinal tract, सबको पता है ना ये बात, everybody knows this, right? The lateral part won't be carrying so much of pyramidal tracts. This should be clear in your mind, okay?
right? Then what do we have here? We have the midbrain, ठीक है? And what type of image is this? This is a cadaveric image, ठीक है? This is an anatomy image. On radiology, I will be seeing a heart-shaped midbrain. That is how it looks on a radiology, okay? Because this part is the ventral part, this part is the dorsal part, पीछे की तरफ वाला, ठीक है? Okay, all right, ठीक है? चलो अब बात करते हैं सर मिड ब्रेन सिंड्रोम्स की, ठीक है? ऑल राइट, नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग मिड ब्रेन सिंड्रोम. मैंने आपको क्या बताया था? मिड ब्रेन का ब्लड सप्लाई क्या होता है? पीसीए, ठीक है? तो पहली बात क्लियर हो गई कि अगर मिड ब्रेन सिंड्रोम होगा तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? पीसीए, ओके? सो पीसीए, और ठीक है, सो पीसीए के अलावा देयर इज वन मोर आर्टरी विच इज द बेसल आर्टरी, ठीक है? तो बेसल आर्टरी कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व. So whenever you come across a question of Weber syndrome, I'll tell you how to diagnose it. ठीक है? After you have diagnosed it, they will ask you for the artery. Okay? The best answer, the single best answer for artery is going to be the posterior cerebral artery. If posterior cerebral artery is not given in the options, mark the answer as basal artery. So these two arteries are going to cause midbrain syndromes. ठीक है जी? ओके, विच वन? वेबर सिंड्रोम. वेबर पे आते हैं. मैंने आपको बताया था वेबर सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है? अब आप बहुत फोकस करके एक चीज देखना. ओके, कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज द सबस्टेंशिया निग्रा. समझ रहे हो आप? सबस्टेंशिया निग्रा. व्हाट इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डोपामीन, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है ऑफ नंबर 1 स्ट्रोक, ठीक है, हैविंग पार्किंसन लाइक फीचर्स, तो आंख बंद करके think of the midbrain, because this substantia nigra is located only and only in the midbrain. This is the hallmark, ठीक है? No other brainstem syndrome can have Parkinson like features. Number 1 point, very important point, ठीक है? तो पार्किंसन फीचर होंगे, और कौन से फीचर्स होंगे पार्किंसन के? यूनिलेटरल या बायलेटरल? यूनिलैटरल, ठीक है? सो यूनिलैटरल पार्किंसन फीचर्स विल बी देयर, ओके? ऑफ विच साइड? ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड, ठीक है? तो अंडरस्टैंड दिस. पहली चीज सबस्टेंशिया निग्रा एक्सक्लूसिव इन द मिडब्रेन, पार्किंसन लाइक फीचर्स एक्सक्लूसिव फॉर वेबर सिंड्रोम, ठीक है जी? दूसरी बात ये, फॉर ऑल मीडियल सिंड्रोम्स, चाहे मीडियल मिडब्रेन हो, चाहे मीडियल पोंटाइन हो, चाहे कुछ भी हो, मोटर लॉस विल बी देयर, ठीक है? ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है? अब हम दोबारा विल गो टू द पीडीएफ हियर, ठीक है? वेबर सिंड्रोम, सबस्टेंशिया निग्रा इन्वॉल्व्ड, ठीक है? कॉन्ट्रालेटरल पार्किंसंस हॉलमार्क फीचर, ठीक है? ओके, इसके बिना क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट मी इलॉबरेट ऑन द ब्रेनस्टेम सिंड्रोम्स विद यू, ठीक है? इन शॉर्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए. इफ यू नो दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है? फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू इज दैट इन मीडियल सिंड्रोम्स, है ना, आई टोल्ड यू दिस 2 or 3 times, okay, in the last 5 minutes, that in medial syndrome the pyramidal tracts are going to be involved. The patient develops contralateral hemiparesis, ठीक है? बात समझो आप, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस डेवलप होता है पेशेंट को बिकॉज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज विदाउट ट्रंकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इसका आप बस ये पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है? कि अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा, लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड का इन्वॉल्व होगा, ठीक है? ऑपोजिट साइड अपर एंड लोअर लिम्ब बोथ विल बी इन्वॉल्व, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट विल बी स्पेयर्ड? ट्रंक विल बी स्पेयर्ड, ठीक है? रीजन for this has something to do with the slightly deeper anatomy, but let's not go there, okay? Because you can just remember it like this, ठीक है? बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं इस बात को कि जो ब्रेनस्टेम सिंड्रोम है, मीडियल सिंड्रोम के अंदर जो एनी मीडियल सिंड्रोम फॉर दैट मैटर, मिड ब्रेन से लेके मेडुला तक, देयर विल बी हेमीपेरेसिस, वीकनेस ऑफ द contralateral side with truncal sparing. This is true for medial medullary, medial pontine, medial midbrain, everything, ठीक है? Alternating hemiplegia बोलते हैं इसको. This is known as alternating hemiplegia or paresis depending on the severity. Okay, remember this. Now, ठीक है? This is about medial syndrome. मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा था. I'm telling about medial syndromes, चाहे वो midbrain हो, चाहे वो pons हो, चाहे वो medulla, ठीक है? Now, when I talk about lateral syndromes, ठीक है? लेटरल सिंड्रोम में द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज नो मोटर लॉस. क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स आर गोइंग टू लाई इन द मीडियल पार्ट. समझ रहे हो बात को? मीडियल पार्ट में लाई करते हैं वो, लेटरल पार्ट में लाई नहीं करते. तो मोटर स्पेयरिंग होती है, देयर इज एब्सोल्युटली नो मोटर इन्वॉल्वमेंट. बट व्हाट इज इन्वॉल्व्ड? द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, यस. Now, do you know the spinothalamic tract? कुछ याद है आपको spinothalamic tract के बारे में? Yes, the spinothalamic tract is a sensory tract. Everybody knows this. Yes, spinothalamic tract is divided into lateral
and anterior spinothalamic tract. ठीक है, anterior spinothalamic tract is not very useful. Okay, why? Because whatever the anterior spinothalamic tract takes care of, the cerebellum can take care of this mostly. Okay, what is important for me is the lateral spinothalamic tract, क्योंकि anterior क्या करता है सर? Anterior does proprioception. ठीक है, ओके, प्रोप्रियोसेप्शन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, और दैट इज व्हाट इट डज, राइट. बट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दिस कैरीज द पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स, है ना, एंड दिस विल ऑलवेज बी इन द लेटरल साइड. ठीक है, सो इट मे, सो यू नो, बीट एनी टाइप ऑफ लेटरल सिंड्रोम फ्रॉम द मिड ब्रेन टू द मिडला, द पेशेंट विल हैव स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लॉस. ठीक है, ओके, यस. और कौन सी साइड को? कॉन्ट्रालेटरल in the body I'm talking about. ठीक है, because you have to understand one more thing, that on the face, ठीक है, दो चीजें होती हैं, one is face, one is body. ठीक है, in the face it will depend on the level of lesion. ठीक है, we will discuss this. ठीक है, this is slightly complicated, but overall कुल मिला के हमें क्या याद करना है? We have to remember that in medial midbrain syndrome, medial pontine syndrome, medial medullary syndrome, in any kind of a medial syndrome, the patient will have alternating hemiplegia, alternating hemiparesis, motor loss. M फॉर मोटर ऐसे भी याद कर लो यार, फालतू की चीज करनी है तो M फॉर मोटर, M फॉर मीडियल. ठीक है, ओके. और लेटरल के अंदर तो पेशेंट विल हैव सेंसरी प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक पैथोग्नोमिक हॉलमार्क फीचर, क्या बताया मैंने आपको? वेबर सिंड्रोम. There is substantial nigra involvement. Patient will have trap features of unilateral contralateral side. समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं नीचे की तरफ. ठीक है, अब बात समझना आप. नर्व्स मैंने आपको बता दी सर. ठीक है, मिड ब्रेन cranial nerve number 3 and 4. Thank you very much Manna, thank you very much. Right, so I'm glad I could help you understand this. मैंने आपको बताया था ना, दिस इज समथिंग दैट आई स्पेंट सो मच टाइम रिवाइजिंग फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज एंड देन आई केम टू द कंसेंसस दैट आई शुड समराइज इट लाइक दिस. ठीक है, अब मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें. ठीक है, सो एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू मिड ब्रेन हैज टू नर्व्स, 3 and 4. ठीक है, तो क्या याद करना है आपको कि जो क्रेनियल नंबर 3 होती है ना, राइट, 3 इज व्हाट इज इन्वॉल्व इन द मीडियल सिंड्रोम. ये आप याद कर सकते हो. ठीक है, राइट, 3 इज इन्वॉल्व इन द मीडियल सिंड्रोम. 4 इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्यों नॉट इम्पॉर्टेंट तुम सोच रहे होगे? क्योंकि मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा जिसके अंदर लेटरल मिड ब्रेन सिंड्रोम पूछा हो. ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लेटरल मिड ब्रेन सिंड्रोम में 4 इन्वॉल्व होती है, नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं. लेटरल आएगा तो मैं डायग्नोस कर लूंगा. कैसे डायग्नोस कर लूंगा? क्योंकि मुझे पता है सर, लेटरल आएगा तो उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, है ना. आई कैन रूल आउट एंड डायग्नोस. सो अगर तुम्हें इतना आता है ना तो तुम रूल आउट करके भी डायग्नोस कर लोगे. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है, राइट. सो अगर मिड ब्रेन सिंड्रोम है तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर पार्किंसन लाइक फीचर्स. ठीक है, इफ दे आर देयर आई एम गोइंग टू लुक फॉर थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट. एक्स्ट्राओकुलर मसल्स विल बी गॉन. ठीक है, ऑल एक्सेप्ट LR6 एंड SO4. ठीक है, सो दैट विल बी अ डाउन एंड आउट आई. ये सब पता होगा ना तुम लोगों को. यस, डाउन एंड आउट आई, राइट. विल टॉक अबाउट इट. थर्ड नर्व इज इन्वॉल्वड. ठीक है, नाउ पॉन्स के अंदर अगेन, ठीक है, पॉन्स के अंदर यू हैव टू रिमेंबर दैट द पॉन्स हैज 5, 6, 7, 8. ठीक है, चलो, cranial nerve number 5. ठीक है, 5 is going to supply the lateral upper pons, is going to be there in the lateral upper pons. ठीक है, lateral का मतलब hemi anesthesia. ठीक है, okay, so lateral upper pons, 5th nerve will be there. Okay, the 6th nerve will be there, 6th nerve will be there in the medial pons. ओके, ये याद रखना. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इनवर्ड आई. क्यों? क्योंकि LR इज गॉन, तो आई विल बी अडक्टेड इनसाइड. ठीक है, तो ये आप देख के डायग्नोस कर सकते हो सर. मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम पेपर में नहीं आता, लेकिन अगर आया तो 2 मिनट नहीं लगेगा डायग्नोस करने में, है ना. सपोजिंग आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, ओके, एंड आई से दैट द पेशेंट इज हैविंग सम काइंड ऑफ ब्रेन स्टेम सिंड्रोम. क्या बोलोगे आप? The patient is having what type of brainstem syndrome, sir? है ना, I will label it, of course. This is the right eye, this is the left eye. ठीक है, so which brainstem syndrome is the patient having, sir? अब आपको बात ये समझनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रालेटरल नहीं होगा, यहाँ पर ipsilateral होगा. क्यों? क्योंकि सर न्यूक्लियर, सो राइट साइड मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम. एक और बात आप याद कर लो कि जो भी फेस के ऊपर होगा ना, फेस के ऊपर चाहे एनेस्थीसिया हो चाहे मोटर लॉस हो, इट विल ऑलवेज बी ipsilateral, बट द बॉडी विल बी कॉन्ट्रालेटरल. इसलिए तो हम कहते हैं अल्टरनेटिंग, है ना. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अल्टरनेटिंग हेमी एनेस्थीसिया, अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया. व्हाई अल्टरनेटिंग? बिकॉज फेस पे ipsilateral होता है, बॉडी में कॉन्ट्रालेटरल होता है. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. नाउ नंबर 7, लेटरल लोअर पॉन्स. ये भी नहीं पूछते हैं. ठीक है, सो मीडियल पॉन्टाइन पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, मतलब कुछ नहीं पूछते हैं इनमें से, बट तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. 5th nerve is involved in the upper pontine syndrome, lateral upper pons. Okay, medial pontine syndrome,
अगर पॉन्स में से क्वेश्चन आएगा तो इस पे आएगा, ठीक है, डन। सेवेंथ नर्व इन्वॉल्व इन द लेटरल लोअर पॉन्स, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू मेडुला, मेडुला 9, 10, 11, 12, ठीक है। आउट ऑफ 9, 10, 11, 12 पहली बात आपको याद करनी है कि जो 12th नर्व होती है दैट इज लेटरल, सॉरी दैट इज मीडियल, इंपॉर्टेंट, यस। तो 12th नर्व इज मीडियल, आपको देखना एक बार डायग्राम, यू वांट टू सी द कट सेक्शन ऑफ द मेडुला, यस आई विल शो यू, है ना, कट सेक्शन ऑफ मेडुला, है ना, देखो देखो देखो, जस्ट लुक एट दिस, है ना। मैंने आपको ये बताया कि द 12th नर्व न्यूक्लियाई लाइज इन द मीडियल पार्ट, am I wrong? I'm absolutely right, I'm absolutely right, I'll show you, देखो, this is the medulla oblongata, yes, I told you about the 12th nerve, है ना, 12th nerve nuclei, can you locate the 12th nerve nuclei now? 12th nerve nuclei दिख रहा है क्या? चलो नहीं भी दिख रहा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लेवल्स अलग अलग हैं, हम देखेंगे, ढूंढते बैठेंगे, नहीं मिलेगा, कई बार नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ना 12th नर्व का न्यूक्लियस इज व्हाट वी हैव टू सी, वन सेकेंड, ऑलराइट गाइस, सॉरी फॉर दैट, यस। तो एज आई वाज सेइंग, आप ये बात मान लो कि जो मीडियल मेडुला होता है ना, वहां पर दैट इज अ 12th नर्व, ओके। ऑल द अदर नर्व्स आर इन द लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला, ओके, यस। नाउ नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि कौन सी नर्व कहाँ पे है, कोई दिक्कत है नहीं है, नर्व का फंक्शन हमको सबको पता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी मीडियल सिंड्रोम्स, मीडियल सिंड्रोम्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, medial syndrome, when will you suspect a medial syndrome, answer me, when will you suspect a medial syndrome, M for medial, M for motor, alternating hemi, alternating hemi anesthesia, no no no, alternating hemiplegia, alternating hemiparesis, ठीक है, उस टाइम पे सस्पेक्ट करना, ठीक है, हेमीप्लेजिया, हेमीपेरेसिस। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, फेस के ऊपर तो इप्सिलैटरल और बॉडी के ऊपर कॉन्ट्रालैटरल, फॉर एग्जांपल द मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम, है ना, medial midbrain syndrome, which nerve is involved, nerve number 3, okay, so nerve number 3 is going to cause all of its motor problems, in which eye, on the ipsilateral eye, ठीक है, so the ipsilateral eye will be down and out, why will it be down and out, because what is functioning, the only two muscles that are functioning are SO4 and LR6, so the eye is going to be down and out in medial midbrain syndrome, ipsilateral eye. Apart from that, there is going to be motor loss in the contralateral part of the body, along with that there will be Parkinson's in the contralateral part of the body, ठीक है, इतना सा आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। उसके अलावा रिमेंबर द प्यूपिल विल बी फिक्स्ड एंड डायलेटेड, व्हाई, बिकॉज द थर्ड नर्व, यस, द थर्ड नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, इट इज गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, है ना, एनाटॉमी पढ़ी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस गोज अलोंग विद द लोअर डिवीजन ऑफ द थर्ड नर्व सप्लाइंग द स्फिंक्टर प्यूपिली, है ना, यस। तो दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, नर्व इज गॉन, सो द प्यूपिल इज फिक्स्ड एंड डायलेटेड इप्सिलेटरली, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ऑलराइट, आर वी डन विद दिस, यस। सो अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया विद कॉन्ट्रालेटरल, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, अब हाइपोग्लॉसल और फेशियल नर्व की भी पाल्सी होगी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको समझना क्या है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया, बट अब मैंने आपको वही बताया ना कि जो इप्सिलेटर वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि जो नर्व के फाइबर्स हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू गो एंड रिले एट द न्यूक्लियस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना 5, 6, 7, 8 फ्रॉम द पॉन्स एंड 9, 10, 11 फ्रॉम द मिडुला, दोज आर द न्यूक्लियाई ऑफ दोज नर्व्स, ठीक है, उसके नीचे फिर वो नर्व राइज होती है, ठीक है, बट द फाइबर्स दैट आर गोइंग टू बी कन्वर्जिंग एंड मेकिंग दोज नर्वस फाइबर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन ना, है ना, तो उसके ऊपर मतलब न्यूक्लियस के ऊपर अगर लॉस होता है तो कॉन्ट्रालेटरल जाता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल, थर्ड नर्व की लोकेशन इज मिड ब्रेन, ठीक है, तो 4 मतलब 4 छोड़ दो, 5, 6, 7, 8 ये सब ना अगर इन पर्टिकुलर नर्व के ट्रैक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि होता है, अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि मिड ब्रेन से नीचे ही तो डिसेंड होकर आएंगे ना फाइबर्स उसके, राइट, सो द 7th nerve and the 12th nerve are going to be contralaterally involved, understood, but the third nerve is going to be ipsilaterally involved, ठीक है, as we go down we are going to understand further, okay. Now medial pontine syndrome, I told you if a pontine syndrome comes, this is the one that will be asked, ठीक है, so the patient will have ipsilateral loss of nerve number 6, है ना, so the patient will have a inward deviated ipsilateral eye, उसके अलावा नर्व नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ कॉन्ट्रालेटरल जाएगा, अंडरस्टूड, तो कॉन्ट्रालेटरल फेशियल एंड टंग पाल्सी, ओके। तो ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट इनको बनाता है,
right? The tract that is arising from the head going into the nuclei के बाद nerve बाहर निकलती है. Understanding this? So the tract is going to be involved. What is the name of the tract? Even that is written here. Corticobulbar tract. Understood? Corticobulbar tract, contralateral involvement. Okay, right. Along with that, posterior column loss, yes. Alternating hemiplegia, yes. ठीक है, ओके. मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम बताओ सर इसके अंदर क्या होगा? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया, अल्टरनेटिंग हेमीपेरेसिस, along with medial medullary syndrome, involvement of the 12th nerve, ipsilateral 12th nerve will be involved. ठीक है, मुझे बताओ अगर राइट साइड की hypoglossal nerve is going to be gone, which side will the tongue be deviated? It will be deviated to the same side, है ना? तो tongue deviates to the same side of paralysis. ठीक है, राइट साइड की पैरालिसिस है तो राइट साइड में डिविएट होगी. समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, सो इप्सी लैटरल हाइपोग्लॉसल नर्व इज अ फीचर ऑफ मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फेशियल नर्व विल बी इंटैक्ट. क्यों? क्योंकि ऊपर वाले फाइबर्स, ऊपर वाली नर्व तो निकल गई, राइट? दैट इज ऑलरेडी कम आउट. सो ओनली एंड ओनली सिम्टम विल बी इप्सी लैटरल डिविएशन ऑफ टंग. ठीक है, ओके, प्लस ऑफ कोर्स योर अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम. This is the most important lateral syndrome that you need to know about. ठीक है, nerves involved 9, 10, 11. ठीक है, and what do you see in lateral syndromes? You see alternating hemi anesthesia. ठीक है, alternating hemi anesthesia. ठीक है, चलो अब सिंपल बात है, try to understand. मेडुला पे 9, 10, 11 nerve involved. ठीक है, ओके, चलो, है ना? तो अल्टरनेटिंग हेमी एनेस्थीसिया होगा. हेमी एनेस्थीसिया का मतलब क्या हो गया कि पेन टेम्परेचर. ऑफ कोर्स व्हाट ट्रैक्ट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. यस, सो कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर बॉडी फाइबर्स विल बी गॉन एंड इप्सिलैटरल पेन एंड टेम्परेचर ऑन द फेस. दिस इज कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, कॉमन फॉर ऑल लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम्स और ऑफ ऑल लेटरल सिंड्रोम्स फॉर दैट मैटर. ठीक है, ओके. अब पॉन्स पे आ जाते हैं. पॉन्स छोटा सा है सर, पॉन्स इतना सा करना है. लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम अगले पेज पे एलॉबरेटेड है. ठीक है, ओके. सो अपर पॉन्स, लोअर पॉन्स. रिमेंबर अपर पॉन्स, यस, अपर पॉन्स के अंदर द फिफ्थ नर्व विल बी इन्वॉल्व, राइट? सो इप्सिलैटरल मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, ओके. लोअर पॉन्स इप्सिलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी. कोई डाउट? ऑफ कोर्स along with alternating hemi anesthesia. Pain and temperature on the face ipsilateral, on the face ipsilateral, on the body contralateral. ठीक है, ट्रंकल स्पैनिंग इसमें नहीं होती. बाय द वे रिमेंबर, ट्रंकल स्पैनिंग इज ओनली इन medial syndrome, medial brainstem syndrome. Here there is no truncal sparing. Okay, yes. Now coming to the Wallenberg syndrome, the lateral medullary syndrome, the most important syndrome of all. ठीक है, okay. चलो अब बात समझो आप इसकी. ठीक है, रिमेंबर दैट द आर्टरी पता सबको, इट वाज द वर्टिब्रल आर्टरी मोर देन PIC. ओके, राइट. क्लिनिकल फीचर अल्टरनेटिंग हेमी एनेस्थीसिया, सबको पता है. यस, प्लस अलॉन्ग विद दैट देयर इज गोइंग टू बी इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम. ठीक है, बिकॉज फॉर सम रीजन द सिंपैथेटिक प्लेक्सस इज आल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्वड. ओके, सो इप्सिलैटरल हॉर्नर भी होता है, रिमेंबर. ठीक है, इप्सिलैटरल हॉर्नर. नाउ हॉर्नर सिंड्रोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू ऑप्थेल्मोलॉजी, because there are pre-ganglionic horner, there is post-ganglionic horner. You have to differentiate कि कहाँ पर लीजन. ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा when we do ophthalmology, we'll discuss because I don't have the slides now. ठीक है, okay. Involvement of cranial nerve number 9, 10, 11. Now you will tell me what will happen. 9 and 10 supply the palate. ठीक है, तो ipsilateral uvular deviation है ना, just like ipsilateral tongue deviation. Okay, ipsilateral deviation of the uvula. क्यों? क्योंकि weak side पे deviate होगी ना वो. ठीक है, ipsilateral uvular deviation. ठीक है, then vocal cords of the ipsilateral side in what? Cadaveric position. Clear? ठीक है. Dysarthria, dysphagia, because patient is not able to speak now. Why? Because parietal muscles are gone. Okay, dysphagia, dysarthria. Okay, along with that cerebellar ataxia. Okay, quit out. Why cerebellar ataxia? Because of brainstem involvement. ठीक है, cerebellar ataxia is there. Ipsilateral uvular deviation, ipsilateral vocal cord paralysis, and dysarthria and dysphagia. Dysarthria you can also say because of vocal cord injury as well. ठीक है, okay. And Horner syndrome again very important, along with alternating hemi anesthesia. Okay, so that is going to complete the localization of brainstem syndromes. Please give me a thumbs up if you have understood, if you have liked the session so far. Okay, because this is the best way, this is the way that I remember things. ठीक है, हमने कुछ रटना नहीं है. Okay, we have just